Hello and welcome to Rumbles Academy. In today's session, we'll discuss some important newspaper articles from 13th October 2022. For more study materials and updates, you may also join our WhatsApp group. We'll provide the link of the group in the description below. So this is the list of topics that we'll cover in today's session. Let's start. So the first article is about India's first 24/7 solar powered village. Now this particular village is in Gujarat, in the Mehsana district of Gujarat. The name of the village is Modhera. Now this name of the village is very important because it can be directly asked in the prelims. From GS paper 3, it can be important from the renewable energy point of view because we'll try to learn about the state of India's solar power and also about the renewable energy which is prevalent in India, and this has been taken from the Arunachal Times. Let's see. So about the current context, as I was saying, the Prime Minister has declared Modhera, a village in the Mehsana district of Gujarat, as India's first 24/7 solar powered village. अब ये जो विलेज है, इस विलेज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. द विलेज विच इज नोन एज मोदेरा, इट इज फेमस फॉर सन टेम्पल विच इज अ प्रोटेक्टेड एंशियंट साइट है विच इज सिचुएटेड ऑन द रिवर पुष्पावती. नाउ दिस पार्टिकुलर विलेज, या आप कह सकते हो कि ये जो सन टेम्पल है, इट वॉज बिल्ड बाय किंग भीमा वन ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी इन 1026 to 27. ठीक है. अब ये जो चालुक्य डायनेस्टी है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, डेफिनेटली हर्ड अबाउट इट. इट वाज अ क्लासिकल इंडियन डायनेस्टी. ठीक है. दे रूल लार्ज पार्ट्स ऑफ सदर्न एंड सेंट्रल इंडिया बिटवीन द 6th and the 12th centuries AD. And this particular Chalukya dynasty was founded by Pulakeshin I, right? So the temple will also acquire a 3D projection facility which will inform tourists about the history of Modhera. So this particular facility, the 3D projection facility, will exhibit knowledge and information about the history of Modhera, especially about the rule of the Chalukyas. And then about the solar power generation, you can see the solar power village would be self-sufficient in solar energy generation as it will utilize 1,000 solar panels. अब ये जो सारे panels है, now they have been installed on the roofs of the village houses, ठीक है, and not just on the residence but also on the government buildings. So this will help to generate electricity around the clock for the villagers. Now this has been developed through the ground-mounted solar power plant, and more than 1,300 rooftop solar systems on residential and government buildings have been installed. Now they have been integrated with the battery energy storage system. अब ये जो BESS, that is the battery energy storage system, it's a type of energy storage system that uses batteries to store and distribute energy in the form of electricity. ठीक है. तो यहाँ पे आप स्टोर भी कर पाओगे, और अगर if you are able to store it and harness it, definitely you will also be able to trade with the electricity. आप ये जो electricity है, जो abundant electricity है in your particular houses, now you will also be able to trade it. आप ये जो electricity आप उसे बेच भी पाओगे. So, and if you are able to store and harness the electricity, and if you are able to trade in it, definitely it will also help the empowerment of the villagers by securing a livelihood for them, right? So now let's look at the benefits from this particular project. The project will demonstrate how India's renewable energy prowess can empower people at a grassroots, that is at the village level. The people in the village wouldn't pay for electricity. अब देखिए, मान लीजिए अगर अपना जो solar panels है, if you are able to harness electricity from those particular solar panel, definitely आपको कोई यहाँ पे distribution company को you would not be required to pay electricity bill, right? And rather they could start, अगर मान लीजिए if you have abundance of it, as I was saying, you will also be able to sell it and earn from energy produced by the solar panel by selling the abundant electricity to the government grid. ठीक है. And it will also generate employment at a village level and ultimately improve the standard of living of those particular villages, especially in this case the village of Modhera. So it will also enhance the sustainable implementation of various welfare projects in Modhera के केस में, because अगर मान लीजिए if we have electricity, अगर यहाँ पे if we have a constant source of electricity, definitely जितना भी सारा projects है, now those projects will be able to be carried smoothly. So the residents of the area will also be able to save 60 to 100% of the electricity bill, the point that I've already mentioned. It will reduce the drudgery, that is the hard work among the rural women and girls. तो देखिए क्या होता है, normally गाँव या मान लीजिए इन द विलेजेस में क्या होता है ना, बस्तियों में, द वुमेन और द गर्ल्स दे बेसिकली दे आर मेंट टू कुक, है कि नहीं. और कुकिंग के लिए उनको क्या करना पड़ता है, जो फॉरेस्ट हो गया या कहीं से भी दे हैव टू लाइक गैदर लॉग्स या वुड आप कह सकते हो. ठीक है. लेकिन ये जो बर्निंग ऑफ वुड है, ठीक है, ये जो बर्निंग ऑफ वुड है विच वी यूज फॉर कुकिंग, तो इससे क्या होता है ना, दिस कैन लीड टू स्मोकी किचन्स. और ये जो स्मोकी किचन्स है, इट कैन ऑल्सो हैव अ रिस्क फॉर द लंग्स एंड द आई एज वेल. ठीक है. तो ऐसा अगर मान लीजिए इफ यू हैव इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, देन डेफिनेटली विल बी एबल टू टैकल विद दिस चैलेंजेस एंड empower the women as well.
Now let's look at the status of solar energy in India, because if any question has been asked मान लीजिए from solar energy हो गया या from the state of renewable energy, you'll be able to cite these points and facts. So the installed solar energy capacity has increased by 19.3 times in the last 8 years and stands at 56.6 gigawatt. अब देखिए ये जो 56.6 gigawatt का जो capacity है, जो current capacity of India regarding the solar energy, now this has been possible because of various government initiatives. ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट क्या करते हैं, नाउ दे द गवर्नमेंट एक्चुअली प्रोवाइड सम इंसेंटिव, या मान लीजिए इन द प्रोडक्शन ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक सेल, जो मैंने कुछ दिन पहले मैंने कवर किया था. तो इसी वजह से आप कह सकते हो कि इंडिया हैज बीन एबल टू सिक्योर दिस फीड या सिक्योर दिस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर एनर्जी. So further, India has set an ambitious target to achieve a capacity of 175 gigawatt worth of renewable energy by the end of 2022. Okay, this is a target which has been set by India, and this is not the only target. India also aims to harness, या आप कह सकते हो to increase the solar capacity या of the renewable energy to 500 gigawatt by the year 2030. ठीक है, तो मोदी जी ने ये दिया है कमिटमेंट. ठीक है, regarding the initiative या regarding India's contribution towards the renewable energy. Now this is the world's largest expansion plan for renewable energy. तो अगर ये implement होता है, then definitely it will be a major feat, a major achievement for India. India was the second largest market in Asia for new solar photovoltaic capacity and third globally. It ranked fourth for the total installations. यहाँ पे जितना भी installation है regarding ये जो solar capacity है, तो इसमें क्या है, India has become the fourth one by surpassing या by overtaking Germany, which stands at 59.2, और इंडिया का जो capacity है is 60.4 gigawatt. So as of June 2022, Rajasthan and Gujarat were the top states for large-scale solar, accounting for 53% and 14% of installations, respectively, followed by Maharashtra with 9%. So these are the three states. First हो गया Rajasthan, then Gujarat, then Maharashtra. Obvious सा बात है, देखिए नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है या नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स है, इस लिस्ट में काफ़ी पीछे होगा. क्यों? बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में यू नो कि यहाँ पे जो क्लाइमेट है ना, क्लाइमेट इज क्वाइट मॉइस्ट इन नेचर. यहाँ पे काफ़ी बारिश होता रहता है. ठीक है, तो इसीलिए ऑब्वियस सा बात है, विल नॉट be able to harness too much of solar energy in our region, right? But still, अगर आप देखोगे in the other parts of India, Rajasthan, Gujarat and Maharashtra tops the list of the solar scale. Okay. Now let's look at some of the initiatives of the Indian government regarding the solar power. So the first initiative is about the solar park scheme. So the solar park scheme plans to build a number of solar parks, each with a capacity of nearly 500 megawatt across several states of India. एंड देन अबाउट द रूफटॉप सोलर स्कीम. देखिए ऐसा बहुत सारा स्कीम लाते हैं, बहुत सारे इंसेंटिव दिया जाता है, सब्सिडीज दिया जाते हैं. तो ऐसा ही है यहाँ पे रूफटॉप सोलर स्कीम which basically aim to harness solar power by installing solar panels on the roof of the houses. ठीक है, एंड देन अटल ज्योति योजना, दैट इज अजय जिसे कहा जाता है. अब ये जो अजय स्कीम है, इट वाज लॉन्च्ड इन सितंबर 2016 फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम इन स्टेट्स विद लेस देन 50% ऑफ हाउस होल्ड कवर विद ग्रिड पावर. अब देखिए अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, जो भी स्टेट्स है जिसमें 50% से भी हाउस होल्ड में कम इलेक्ट्रिसिटी है, उन स्टेट्स में क्या किया जाएगा, जो भी सारा स्ट्रीट्स है, अब ये स्ट्रीट्स में the streets will be enlightened or the street lights will be implemented by the solar power. Okay, now this is according to the Ajay, that is Atal Jyoti Yojana. And then about the National Solar Mission, so it is a major initiative of the government of India and state governments, which basically the government of India and the state governments, they work in collaboration to promote ecologically sustainable growth while addressing India's energy security challenge. Then about the Srishti scheme, बताया गया about the which stands for Sustainable Rooftop Implementation of Solar Transfiguration of India scheme to promote the rooftop solar power projects in India. अब देखिए इंडिया में जितना भी initiatives है, most of the initiatives are focusing on basically on installing rooftop solar cells. है कि नहीं, सो दैट जहाँ पे जितना भी घर है या मान लीजिए ऑफिसेज वगैरह है, रेसिडेंसेस है, सो दैट दे बिकम इंडिपेंडेंट इन नेचर, सो दैट दे हैव अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेनली ड्यूरिंग द समर टाइम. ठीक है, अब ये जो सारे इनिशिएटिव्स है, ऑब्वियस सा बात है, ये सारा इनिशिएटिव्स याद रखना पॉसिबल भी नहीं है, बट जितना हो सके आप थोड़ा एक बार देख लीजिएगा और जितना हो सके आप ले लीजिएगा, सो दैट यू विल बी एबल टू अप्लाई दिस एग्जांपल्स इन योर आंसर्स. Now see, you should know that there are also certain challenges, as I told you, North East के केस में तो मैंने आपको बता ही दिया है. But let's see what are the challenges faced by the various parts of India.
तो पहला भी बताया गया अबाउट दी हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, ठीक है। तो यू शुड नो कि हम फोकस करते हैं अबाउट दी फोटो वोल्टिक सेल्स के बारे में या सोलर पावर के बारे में, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, जो सेल्स यूज होते हैं, जो पैनल्स यूज होते हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी नीड टू इंपोर्ट, ठीक है। हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हाल ही में मैंने कवर किया था अबाउट दी PLI, दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के बारे में, जो कि सोलर सेल्स के बारे में था, ठीक है। अभी तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिया है, ये इनिशिएटिव इसीलिए लिया है सो दैट इंडिया कैन बी सेल्फ रिलायंट इन नेचर, ठीक है। करेंटली व्हाट वी डू इज दैट वी नीड टू डिपेंड ऑन द इंपोर्ट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, स्पेशली ऑन द चाइनीज प्रोडक्ट, राइट। दिस इज द रीजन व्हाई। सो उसके बाद बताया गया है कि आउट ऑफ द 15 गीगावाट कैपेसिटी ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिया, ओनली 3 to 4 गीगावाट ऑफ मॉड्यूल्स आर टेक्नोलॉजिकली कॉम्पिटिटिव एंड वर्दी ऑफ डिप्लॉयमेंट इन ग्रिड बेस्ड प्रोजेक्ट। तो जितना भी सोलर ग्रिड बेस्ड प्रोजेक्ट है उसमें बस हम लोग का जो मॉड्यूल्स है उसमें बस 3 to 4 गीगावाट ऑफ मॉड्यूल्स आर ओनली वर्दी ऑफ डिप्लॉयमेंट। बाकी सारा जो है दोज आर नॉट वर्दी, या आप कह सकते हो कि दोज आर नॉट टेक्नोलॉजिकली कॉम्पिटिटिव, ठीक है। आपको पता है कि इन केस ऑफ टेक्नोलॉजी कंट्रीज लाइक चाइना दे आर क्वाइट एडवांस्ड। उसके बाद आता है अबाउट द रॉ मटेरियल सप्लाई। देखिए जो सिलिकॉन वेफर है ना, द सिलिकॉन वेफर द मोस्ट एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। वापस से वही बात है कि हमें इंडिया फॉरेन पे डिपेंड करना पड़ता है। सो वेरियस टाइप्स ऑफ वेफर्स कैन बी यूज्ड टू मेक सोलर सेल्स, यू शुड नो। बट जो सिलिकॉन वेफर्स है ना, सिलिकॉन वेफर्स आर द मोस्ट पॉपुलर वंस। दैट्स बिकॉज द सिलिकॉन वेफर इज थर्मली स्टेबल, ड्यूरेबल एंड इजी टू प्रोसेस। बट दिस पर्टिकुलर जो सिलिकॉन वेफर्स है दे आर स्टिल नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, ठीक है। इंडिया करेंटली इंपोर्ट्स 100% सिलिकॉन वेफर्स एंड अराउंड 80% cells. Further, other key raw materials such as silver and aluminum, तो ये सारा जो metal paste है which are used for making the electrical contacts, now they are also imported completely, ठीक है, from foreign nations. Then inefficiencies in solar photovoltaic cell. अब the utility scale solar photovoltaic sector continues to face challenges like land cost, ठीक है। आप देखिए if you need to install the solar capacities, the solar cells or the panels, then definitely जो land आप यहाँ पे acquire करोगे उसके लिए आपको पे भी करना होगा। एंड देयर आर हाई T&D कॉस्ट, लॉसेस भी होता है यहाँ पे, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे जो ट्रांसमिशन है एंड डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी बहुत सारे लॉसेस है, एंड अदर इनएफिशिएंसीज एंड ग्रिड इंटीग्रेशन चैलेंजेस। एंड देयर आर ऑल्सो इश्यूज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी। नॉर्मली क्या होता है ना, मान लीजिए अगर एक खाली जमीन है तो उसमें हो सकता है कि द पर्टिकुलर एरिया ऑल्सो like can be under some नेशनल पार्क हो सकता है, या मान लीजिए कुछ भी वहाँ पे रह सकता है। तो इसी कारण से, या मान लीजिए हम कभी कभी वी ऑल्सो टेक इनिशिएटिव्स टू इंस्टॉल दिस सोलर जो पैनल्स होता है हम कभी इंस्टॉल करते हैं ऑन द लेक्स में या जो पोन्स में हम इंस्टॉल करते हैं। बट डेट बेसिकली पोजेस अ थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। जो कम्युनिटीज है या वहाँ पे जो भी सारा फिशेस वगैरह वहाँ पे रहता है तो उसके लिए भी एक थ्रेट है। एंड अबाउट द प्राइसिंग इशू, देखिए वाइल इंडिया हैज अचीव्ड रिकॉर्ड लो टैरिफ्स, बहुत कम अभी चल रहा है, बट स्टिल इंडिया हैज अ लॉन्ग वे टू गो, ठीक है। बिकॉज जो भी एंड कंज्यूमर्स है, एंड कंज्यूमर्स को अभी भी ये सोलर पावर से जो बेनिफिट है अभी भी फिलहाल नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसी टॉपिक के बेसिस पर जैसे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अरुणाचल प्रदेश, जहां पे बताया गया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज द सेकंड लार्जेस्ट क्राइम ऑफ द ड्रग्स, ठीक है। तो ऐसा कहा गया है बाय द APSCW वाइस चेयरपर्सन। APSCW इज अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन। तो उन्होंने कहा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज द सेकंड लार्जेस्ट क्राइम इन द वर्ल्ड आफ्टर ड्रग्स, एंड गर्ल चिल्ड्रन स्पेशली ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैव बीन द इजी टारगेट ऑफ द ह्यूमन ट्रैफिकर्स। तो today's article will also learn about human trafficking condition या state किस तरीके से ये क्या क्या होता है in case of India. This can be important for our prelims as well as from mains. GS paper 1 issues related to women and children point of view. It has been taken from the Arunachal Times. Now इन्होंने ऐसा कहा है during a capacity building and training program जो कि which is going on in Tirap district. So first you should know what is the meaning of human trafficking. It is basically the illegal transportation of individuals, of humans, of children mostly, by force or by deception for the purpose of labor, then sexual exploitation and or other such activities basically, ठीक है। तो normally यहाँ पे जो victim होते हैं they are mostly children or women or girls, ठीक है। So human trafficking कहा गया है कि it is the second largest crime in the world after drugs and girl children, especially dropout students who are less educated. Now they have been the easy target of the human traffickers. This has been stated by, as I told you about, this has been stated by the Arunachal Pradesh State
Commission for Women, Vice Chairperson Nawam Yahitar, who during a capacity building and training program in Tirap district, उन्होंने ये statement दिया है. तो stating that girl children, especially dropout students, are easily trafficked on the pretext of job offer. तो उनको देखिए कभी जॉब के लिए या मैरिज के लिए, ठीक है, they are appealed to all, basically उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उनको ट्रैफिक किया जाता है, ठीक है. तो उन्होंने अपील किया है टू ऑल द स्टेक होल्डर्स. तो स्टेक होल्डर्स यहाँ पे कौन रहेगा? द एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद द पुलिस रहेगा, द सोसाइटी, द पेरेंट्स, ठीक है. तो उनको उन्होंने अपील किया है टू बी वेरी विजिलेंट, ठीक है, टू बी केयरफुल, टू बी अवेयर ऑन रिक्रूटमेंट ऑफ यंग गर्ल्स एज डोमेस्टिक हेल्प. So Tirap DC Taro Mise also emphasized on the need of organizing such training programs and asked the police to be well acquainted with the laws and be reliable. So from the GS paper one point of view, you may be asked about such question about the issues relating to the children and the women. So let's learn what is human trafficking. Okay, we'll learn about the situation in India as well. So human trafficking, you should know the United Nations define human trafficking as the recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of person by means of threat or use of force or any other coercion for the purpose of exploitation. ठीक है, अब ये जो exploitation है, it normally includes the sexual exploitation, prostitution, alright, and forced labor or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs. ठीक है, कभी कभी आप कह सकते हो कि किडनी वगैरह या आइज वगैरह ट्रेडिंग करने के लिए भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया जाता है. ठीक है, द थ्री मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग आर सेक्स ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड डेथ बॉन्डेज. ठीक है, अब ये जो डेथ बॉन्डेज है, दिस इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन विच एन इंडिविजुअल इज फोर्स्ड टू वर्क इन ऑर्डर टू पे अ डेट. अगर मान लीजिए पैसा किसी से लिया जाता है और अगर रिपे नहीं कर पा रहे, तो उस केस में क्या हो जाता है, द अदर पर्सन हु इज नॉट बीइंग एबल टू पे इज ऑफन रिक्रूटेड एज अ हेल्प. ठीक है, उनको यहाँ पे फोर्स लेबर में एंगेज किया जाता है. ठीक है, स्पेशली ये जो कोविड-19 है, तो कोविड-19 के टाइम में भी दिस लेड टू एन इंक्रीज इन वल्नरेबिलिटी टू द ह्यूमन ट्रैफिकिंग. ठीक है, बिकॉज कोविड-19 के टाइम में क्या हुआ था, द लॉकडाउन, द रेस्ट्रिक्शन दैट अफेक्टेड द एग्जिस्टिंग एंटी ट्रैफिक एफर्ट्स. ठीक है, बहुत सारा एफर्ट गवर्नमेंट लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं, ठीक है, जो एनजीओज वगैरह है, जो सिविल सोसाइटीज है, वो भी लेते हैं. लेकिन कोविड के टाइम में दिस वर एक्चुअली डैम्पेंड, दिस वर डाइल्यूटेड. दिस इज द रीजन वाई कोविड-19 के टाइम में एक इंक्रीज एक नोटिस किया गया है. So let's look at the human trafficking situation as state in India. तो देखिए, according to the UN, there is United Nations Office on Drugs and Crime. So this is an organization. According to this organization, the South Asia with India at the center. India is a part of South Asia. So this region is the fastest growing and the second largest region for human trafficking across the world, right after East Asia. East Asian countries like China, Japan, Mongolia, Korea, Taiwan. तो इनके पीछे ही you'll find India. ठीक है. So about 90% of trafficking in India is internal. ठीक है. Normally India के अंदर ही होता है from across the states and district, and the most vulnerable are the lower caste people, the tribal people, the religious minorities and women and girls from excluded groups basically. अब सबसे जो affected region है in the case of India also, you'll find that is West Bengal, which is followed by Chhattisgarh, Jharkhand and Assam. ठीक है, तो these are the four आप कह सकते हो कि four most vulnerable states in regard to human trafficking. ठीक है, अब जो trafficking है of children are for basically for forced labor, for all kinds of domestic work, and trafficking of women for sexual exploitation, mainly आप कह सकते हो for inclusion in prostitution. ठीक है, now this particular areas are, ये जो areas है, now this areas में जो cases हो रहा है human trafficking, now these are the reasons are forced labor, the domestic work and sexual exploitation. So according to the NCRB, you should know ये जो Indian agency है which records the crimes across India. So according to this, a total of more than 6,000 human trafficking cases were registered in the country in 2019. ठीक है, तो देखिए 18 में जो cases था, it was 5,718, और 2017 में देखिए it was 5,900. तो 2019 में जो cases है वो काफी हद से बढ़ गया है. ठीक है, and according to the NCRB 2018 data, 51% of all trafficking victims जो थे वो children थे. Because देखिए children को यहाँ पे transport किया जाता है, normally उनको बेसिकली ट्रांसपोर्ट किया जाता है फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक फोर्स्ड लेबर. ठीक है, अभी आपको पता ही होगा कि कितना सारा इंडस्ट्रीज है, तो इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए, ठीक है, या मान लीजिए उनको बाद में व्हेन दे ग्रो अप उनको इन्वॉल्व कराने में लिए इन केसेस लाइक इन रैकेट्स लाइक दिस सेक्सुअल प्रोस्टिट्यूशन. किंतु ऐसे केसेस की वजह से चिल्ड्रन को एब्डक्ट किया जाता है. सो 51% जो है वो बस चिल्ड्रन ही है. ठीक है, ऑफ विच मोर देन 80% वर गर्ल्स. ठीक है, तो गर्ल्स ज़्यादा ट्रैफिक किया जाता है as for the causes that I've already told you.
द रिसेंटली ऑर्फेंड चिल्ड्रन इन इंडिया। देखिए कोविड-19 के टाइम में बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ऑर्फन हो चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस वायरस। देखिए दे हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स। तो इस केस में क्या हो जाता है, जो ये बच्चे हैं वी हैव बिकम ऑर्फन करेंटली, नाउ दे आल्सो आर क्वाइट वल्नरेबल, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर यू कैन से बिकॉज ऑफ देयर पुअर फाइनेंशियल कंडीशन, ठीक है। सो दे आर बेसिकली वल्नरेबल एज ऑल्सो द इंक्रीज रिस्क ऑफ ट्रैफिकिंग इन द ग्रैब ऑफ एडॉप्शन के केस में एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड एंड शेल्टर। तो ऐसे केसेस की वजह से नॉर्मली यू कैन से कि द ट्रैफिकिंग कैन इंक्रीज regarding this orphan children in India. Now let's look at the causes of human trafficking. अब देखिए सबसे important cause जो है it is poverty, ठीक है। The poverty is basically it is the root cause of all the evils of society, है कि नहीं। सो पॉवर्टी इज अ कॉज बिहाइंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग। सम पेरेंट्स सेल देयर चिल्ड्रन, कभी कभी पेरेंट्स जब अफोर्ड नहीं कर पाते उनका एजुकेशन वगैरह, उनको सेल ऑफ कर देते हैं सो दैट दे कैन अर्न सम लाइवलीहुड, ठीक है। उनको कहीं पे मान लीजिए एज अ डोमेस्टिक वर्क, ठीक है। सो नॉट जस्ट फॉर मनी बट ऑल्सो इन द होप दैट देयर चिल्ड्रन विल एस्केप द सिचुएशन ऑफ क्रॉनिक पॉवर्टी, ठीक है। तो उनके फैमिलीज में जो पॉवर्टी है ताकि दे कैन लिव अ बेटर लाइफ इन द सिटीज, इन द टाउन्स एंड दे कैन ऑल्सो परस्यू एजुकेशन। तो इसी कारण से दे आर ऑफन सेल्ड ऑफ बाय द पेरेंट्स ओनली, ठीक है। और देन सोशल और कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ डीवैल्यूइंग वुमेन एंड गर्ल्स इन सोसाइटी, दस मेकिंग यू नो इंडिया मोस्टली इज पैट्रियार्कल इन नेचर, ठीक है। तो जो सोशल जो यहाँ पे कह सकते हो कि आउटलुक है, तो इस आउटलुक की वजह से भी द वुमेन आर मोस्टली दे आर वल्नरेबल टू ट्रैफिकिंग। उसके बाद माइग्रेशन, द डिजायर ऑफ पोटेंशियल विक्टिम्स टू माइग्रेट। अब देखिए नॉर्मली जो बस्ती में रहते हैं दे लाइक ऑलवेज हैव अ ड्रीम टू लाइक टू परस्यू अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय माइग्रेटिंग टू टाउन्स, ठीक है। उनका कभी कभी आप देखिएगा कि जो सीरीज आता है लाइक क्राइम पेट्रोल, वहाँ पे आप देखिएगा कि a lot of girls who live in the villages now they have an aspiration of becoming models, of becoming actress. तो ऐसे केसेस में भी उनको ट्रैफिक किया जाता है और ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गिविंग देम अ जॉब, ठीक है। सो दे आर ब्रॉट टू दी अर्बन एरियाज एंड देन बाकी तो को पता ही है, राइट। उसके बाद अदर कॉजेस आर द पोरस नेचर ऑफ बॉर्डर्स, ठीक है। बॉर्डर्स जो है वो पोरस इंटरनेशनल बॉर्डर्स, तो काफ़ी कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि द गर्ल्स और द वुमेन दे आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज एंड देन करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। कभी कभी देखिए जो पुलिस है, जो पुलिस है या अथॉरिटीज है, दे डिड नॉट टेक एक्शंस, ठीक है, एक्शन नहीं लेते या दे डिड नॉट गो फॉर द सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। सो एंड अबाउट द राइज इन मोबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। अभी इतना इंडस्ट्रीज बढ़ गया है कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो ओनर्स है, नाउ दे बेसिकली वांट द चिल्ड्रन टू वर्क फॉर देम। व्हाई? क्योंकि उनको कम पैसा देने से हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए द फोर्स लेबर्स भी काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं आजकल। एंड अबाउट द टेररिस्ट ग्रुप देखिए नक्सलाइट जो है स्पेशली आप कह सकते हो, नाउ दे आर ट्रैफिकिंग चिल्ड्रन। व्हाई? एज यंग एज 6 फॉर द पर्पज ऑफ स्पाइंग, ठीक है। दे आर यूज्ड फॉर स्पाइंग। अगर वो स्पाई करते तो उनको खाना मिलता है, उनको पैसा देते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो फॉर कुरियर्स टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो प्लांटिंग इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेज एंड फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। एंड वेरियस ग्रुप्स आर ऑल्सो वर्किंग अक्रॉस द कंट्री टू ट्रैफिक चिल्ड्रन एंड फोर्स देम टू बैग। अब देखिएगा मोस्टली इन द सिटीज में जितना भी बैगर्स है ना, वो असल में बैगर्स नहीं है, उनको कहीं से ट्रैफिक करके ले जाते हैं कोई एजेंट वगैरह and then they make money out of them, ठीक है। उनको basically उनको they paralyze them by coercive measures, ठीक है। The children and the women are often made to beg by such agents. तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए इंडिया में चलिए देखते हैं कि क्या क्या लॉज है। तो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओनली द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, तो यहाँ पे आपको मिलेगा आर्टिकल 23 एंड 24। सो आर्टिकल 23 स्पीक्स अबाउट इट प्रोहिबिट्स द ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बेगर, ठीक है, दैट इज फोर्स्ड लेबर विदाउट पेमेंट। एंड ऑल्सो आर्टिकल 24 इट फॉरबिड्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन द डेंजरस जॉब लाइक फैक्ट्रीज एंड माइन। तो बेसिकली आर्टिकल 24 जो है इट प्रोहिबिट्स व्हाट? इट प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर। एंड देन इन द आईपीसी ऑल्सो यू विल फाइंड सेक्शन 370 and 370A, which is for the comprehensive measure to counter the menace of human trafficking, and this is basically including trafficking of children for exploitation in any forms including physical exploitation. तो जितना भी केसेस में ट्रैफिकिंग होता है, now they are dealt under section 370 and 370A of the IPC, and also 372 and 373 they deal with the selling and the buying of girls for the purpose of prostitution, ठीक है। तो इस टॉपिक के बेसिस पर एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसका मैंने आपको सैंपल आंसर दे दिया है। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है यू विल बी एबल टू राइट सच आंसर। एक बार पढ़ लीजिएगा सैंपल आंसर। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अगेन अबाउट नॉर्थ ईस्ट। तो दिस इज अबाउट द पीएम डिवाइन, ठीक है। सो पीएम डिवाइन इज बेसिकली अ न्यू स्कीम जो कि लाया गया है बाय द यूनियन गवर्नमेंट। इसी के बारे में हम बात करेंगे। इट कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर टू गवर्नमेंट पॉलिसीज पॉइंट ऑफ व्यू। इट्स बीन टेकन फ्रॉम द सो रिसेंट ये न्यूज़ है दैट इज द यूनियन
कैबिनेट जो इन्होंने अप्रूव किया है एक न्यू स्कीम विच इज नोन एज द पीएम डिवाइन. द पीएम डिवाइन स्टैंड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. नाउ दिस हैज बीन अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट ऑफ द रिसेंट बजट जो था उसमें अनाउंस किया गया था टू एड्रेस डेवलपमेंट गैप्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. आपको पता होगा कि नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है ये टेक्नोलॉजिकली हो गया या आप कह सकते हो कि इन द केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ये काफ़ी पीछे है. तो इसीलिए दिस हैज़ बीन ब्रॉट to address the development gaps in case of north eastern region. तो ये जो PM Divine is a central sector scheme. You should know कि there are schemes which are some are central sector scheme और कुछ होते हैं central sponsor scheme. Central sponsor scheme में कुछ पैसा होता है जो central government contribute करता है और बाकी जो पैसा it has to be borne by the state government. इस केस में लेकिन central sector scheme में यहाँ पे 100% जो funding है वो सेंटर ही करेगा. ठीक है, that is the north eastern state है, उनको कुछ भी यहाँ पे पैसा नहीं देना पड़ेगा. The new scheme जो it will be implemented during the remaining 4 years of the 15th Finance Commission, that is 2022 से लेकर 2025 तक ये जो प्लान है इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा. एंड an outlay has been decided of rupees 6,600 crore. So this is going to be a mega project for the development of Northeast India. The PM Divine is in addition to the quantum of resources available for the development of the Northeast region. It will not be substitute for existing central and state schemes. अब देखिए जितना भी सारा स्कीम ऑलरेडी चल रहा है या जो भी अनाउंस किए गए हैं, this is going to be a separate, but it is not going to substitute it. ठीक है, it is going to be a completely separate scheme for the northeastern region. अब ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम विल बी डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डोनर, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. इसे मिनिस्ट्री ऑफ डोनर कहा जाता है थ्रू दी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल और द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और एजेंसीज. अब ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर कन्वर्जेंटली इन द स्पिरिट ऑफ पीएम गति शक्ति. अब पीएम गति शक्ति इज बेसिकली अ मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. तो ताकि ये सारा जो प्रोजेक्ट है ये नॉर्थ ईस्ट में भी इक्वली इंप्लीमेंट हो, दिस इज द रीजन व्हाई पीएम डिवाइन हैज बीन ब्रॉट अबाउट. इट इज आल्सो मेंट टू सपोर्ट द सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन फेल्ड नीड्स ऑफ द नॉर्थ रीजन. तो जितना भी सारा नीड्स है उस नीड्स को कैटर करने के लिए यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को भी. उसके बाद तो एनेबल लाइवलीहुड एक्टिविटीज फॉर द यूथ एंड वुमेन, बेसिकली बाय एम्पावरिंग द यूथ. आप कह सकते हो बाय मेकिंग और बाय फैसिलिटेटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर द यूथ एंड देन बाय फिलिंग टू फिल इन द डेवलपमेंट गैप्स इन द वेरियस सेक्टर्स. ठीक है, इन द केस ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड सपोर्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स which may be larger in size. So be it the UPSC or be it any state public service commission examinations, it is certain, it is sure and certain that one question will be, at least one question will be asked from Northeast India. ठीक है, तो Northeast India का जो क्वेश्चन है इसको आप किस तरीके से डील करोगे? Let's look at some significances of Northeast India. So Northeast India देखिए स्ट्रेटेजिकली काफी सिग्निफिकेंट है because it is the gateway to Southeast Asia. ठीक है, एंड बियॉन्ड इट इज इंडियाज लैंड ब्रिज टू म्यांमार. ठीक है, आपको पता होगा कि नंबर ऑफ स्टेट्स लाइक अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम इट शेयर्स बाउंड्री विद म्यांमार. सो इट इज बेसिकली अ लैंड ब्रिज. So India's active policy places the northeastern states on the territorial frontier of India's eastward engagement. This India's active policy is very important. It is basically a kind of diplomatic initiative to promote the economic, strategic and cultural relations with the vast Asia Pacific region at different levels. ठीक है, तो ये जो active policy है, it is basically a continuation of the look east policy. ठीक है, now जो region है north region, it is also culturally significant because northeast India is one of the most culturally diverse areas of the world. It is home to over 200 tribes and popular festivals including the Hornbill Festival of Nagaland and then Pang Lapsol of Sikkim. Okay, so these are the festivals which are celebrated in Northeast India. Northeast India, you should know कि it is a dowry-free zone. आप देखोगे कि as compared to the other parts of India, यहाँ पे women का position, यहाँ पे the status of women is quite, आप कह सकते हो कि it's quite strong. ठीक है, it's quite better as compared to the other parts of India. Okay, now this is a very significant aspect about India. About Northeast India. The rich tapestry of the cultures of Northeast India is reflected in its highly developed folk dance forms like the Bihu in case of Assam. Manipur has a tradition of worshipping nature. Not just Manipur, even Arunachal में आप देखोगे a number of festivals are celebrated in which nature is worshipped. ठीक है, तो ऐसे Umang Lai is a festival of Manipur. ठीक है, आप अगर example देते हो, it will be really helpful for fetching marks. And about the economic significance of the northeastern region, देखिए
देखिए द रीजन इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ TOT, दैट इज टी, ऑयल एंड टिम्बर, ठीक है। तो चाय के लिए हो गया, देन ऑयल एंड वुड के लिए भी द रीजन इज वेरी सिग्निफिकेंट। इट इज अ वेरिटेबल पावर हाउस विद द पोटेंशियल ऑफ 50,000 मेगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो यू शुड नो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो रिवर्स है, नाउ दे मोस्टली फ्लो इन द यूथ स्टेज, जहां पे क्या रहता है, जो यंग स्टेज होता है रिवर में, द रिवर्स आर क्वाइट एनर्जेटिक, द रिवर्स आर क्वाइट वाइब्रेंट, एंड दिस इज द रीजन व्हाई दे आर एबल टू लाइक सप्लाई अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। देखिए अरुणाचल में भी आपको पता होगा कि काफी हम यहाँ से हार्नेस करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, एंड एन अबंडेंट रिजर्व ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एज वेल। But then there are also certain challenges that are faced by the northeastern India. The first one is about the isolation from the rest of India. अब देखिए अगर आप इंडिया का मैप देखोगे, नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, काफी दूर हो जाता है, प्लस यू विल फाइंड इट इज ओनली कनेक्टेड बाय अ वेरी स्मॉल रीजन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं चिकन स्नैक कहते हैं, विच इज बेसिकली द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ऑफ वेस्ट बंगाल, इट इज ओनली 60 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है, और जो विथ है ना, विथ बस इसका 22 किलोमीटर है, ठीक है। सो दिस इज द रीजन नॉर्थ ईस्ट रीजन इज क्वाइट आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया। तो अब देखोगे द रीजन एक्सेसिबिलिटी हैज ऑलवेज रिमेन्ड वीक ड्यू टू जियोग्राफिकल फैक्टर्स एंड अनडेवलप्ड ट्रांसपोर्ट लिंक्स विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। लैक ऑफ एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चरली आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज क्वाइट बैकवर्ड, बिकॉज यहाँ पे जो रोडवेज है, वाटरवेज है, एनर्जीज है, नाउ दे आर नॉट डेवलप एट par with the rest of India, as well as the social infrastructure, for instance educational institution भी काफी कम होते हैं। मतलब मान लीजिए कि if the youth of the region wants to pursue higher education, तो उन्हें बाहर जाना पड़ता है कि नहीं, फॉर हेल्थ के लिए भी कभी कभी बाहर जाना पड़ता है। so this is the some of the weaknesses of the region, ठीक है। और उसके बाद आप कह सकते हो कि यहाँ पे about the slow pace of industrial growth, देखिए इंडस्ट्रीज के केस में नॉर्थ ईस्ट में काफी कम इंडस्ट्रीज मिलेगा आपको, ठीक है, एक्सेप्ट सर्टेन इंडस्ट्रीज लाइक बैम्बू वगैरह, यहाँ पे इंडस्ट्रीज काफी कम है। एंड देन अबाउट द टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट, अब देखिए नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है वो आपस में इतना लड़ता रहता है। फॉर एग्जांपल आप बात कर सकते हैं अबाउट द आसाम मिजोरम बॉर्डर डिस्प्यूट, अबाउट द आसाम अरुणाचल बॉर्डर डिस्प्यूट। तो ये सब जो इंस्टेंसेस है, नाउ दिस आर नॉट बेनिफिशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, ठीक है। उसके बाद इंसर्जेंसी एंड पॉलिटिकल इश्यूज, सो इंसर्जेंसी और बेसिकली जो टेररिज्म है विच इज क्वाइट यू विल फाइंड विच इज क्वाइट prevalent in the northeastern region. Now these are basically a political weapon and it's often the result of accumulated anger due to political, economic and social causes, ठीक है। तो आप देखोगे number of terrorist outfits are present in the northeastern region, ठीक है। तो ये जो terrorist outfit है like अल्फा आप कह सकते हो, NSCN कह सकते हो, so they are actually basically you can say a factor of the backwardness of the region, ठीक है। And इसी टॉपिक के बेसिस पर प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन नॉट बेस्ड ऑन दिस आर्टिकल बट बेस्ड ऑन नॉटिस, काइंडली आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The final article is about the Bhumi Puja for a palm oil unit, जो कि which has been taken place at Lower Dibang Valley. So this can be important for prelims, not for the mains, and it has been taken from the Arunachal Times. So ये न्यूज काफी सरल सा है। That is Agriculture Minister Tage Taki on Monday he performed a Bhumi Puja for the 3F oil palms इंटीग्रेटेड, अभी ये कंपनी है तो इनका एक यहाँ पे पाम ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करने होने वाला है इन द लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट, तो इसी का भूमि पूजा किया गया है, ठीक है, इसी के लिए। सो 3F ऑयल पाम हैज प्लेज्ड टू इन्वेस्ट 250 crore rupees to set up one of the largest and state of the art integrated palm oil factory in अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब ये जो 3F palm oil प्राइवेट लिमिटेड है, इट हैज बेसिकली एक्वायर्ड 120 acres of land for the project, तो ये फरवरी में ही एक्विजिशन हो चुका था, एंड ऑल नेसेसरी approvals and statutory clearances pertaining to the land have also been obtained during that time only. So speaking on the occasion, Agriculture Minister Taki has advised the farmers and the company to work together, to work in coordination so that it leads to the improvement of the palm oil farmers prospect. तो local जो यहाँ पे palm oil farmers है तो उनका भी benefit हो जाए। So MLA Gabriel Di Wangsu advised the farmers to understand, imbibe and spread the knowledge gained about the benefits of oil palm cultivation in the region to their farmers, ठीक है। अब जो फैक्ट्री है, द फैक्ट्री विल बी सेट अप और डेवलप इन 2 phases। अभी ये phase 1 is expected to be commissioned by September 2023. तो phase 1 of the project is expected to generate employment for over 300 local people belonging to Arunachal Pradesh, ठीक है। और ये जो 3F oil palm है, this is basically a front runner and pioneer in the oil palm development program based in Hyderabad, Telangana. So इसी टॉपिक के बेसिस पर प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन। So these were some of the questions that I had asked in the previous video. Let's look at the answers. So the answers for the questions are:
अबाउट दी नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स के बारे में, तो इट हैज़ बिन कन्फर्ड फॉर द बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, ये सही है. एंड ऑल्सो ये बताता है कि बैंक्स आर वल्नरेबल टू ह्यूमर्स. ठीक है, तो बोथ आर द करेक्ट आंसर. And then about the cryptocurrency, it is based on the blockchain technology. Okay, and the theme for the International Day of Girl Child is "Our time is now, our rights, our future." And about the medals in the recent national games of 2022 in Gujarat, Arunachal has been able to secure 7 medals, 6 gold and 1 silver. So for now, that was all from our side for this session. Thank you so much for joining in. We'll meet the next one. Bye bye and take care.